Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, today I am going to tell you the other laws of exponents here. Other laws of exponents. The following are two more laws of exponents when the bases are different but the exponents are same. क्या करेंगे हम? Following are two more laws of exponents when the bases are different but the exponents are same. अगर bases different हो और exponents same होते हैं तो हम क्या करते हैं? इन laws का follow करते हैं. Law first क्या कहता है? If x and y are two rational numbers and m is any integer, then x into y to the power m. अगर x और y दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और उनकी पावर्स m हो जाती है तो हम m को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों के पास x to the power m into y to the power m. Is it clear? This is the one identity here. Now laws of exponent, and there is a seventh laws of exponent is if x and y are two rational, y is non-zero and m is an integer, then x by y to the power m is equals to x to the power m and divided by y to the power m. देखिए अभी तक हम ये कर रहे थे, ऐसा हो रहा था तो हम ऐसा कर रहे थे. क्या करते थे हम? सेम पावर्स होती हैं, बेसिस डिफरेंट होते हैं तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई करके उनकी पावर m कर रहे थे. बट यहाँ अभी हमें क्या करना है? x टू द पावर m डिवाइडेड बाय y टू द पावर. यहाँ सेम बेसिस हो रहे थे, अभी हमारे पास डिफरेंट बेसिस हो रहे हैं. देखिए डिफरेंट बेसिस क्या होंगे, कैसे होंगे और पावर सेम होंगी तो हम कैसे करेंगे? x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर m कर देंगे. लेकिन अगर डिवाइड में है तो x और y को डिवाइड कर देंगे और पावर को m कर देंगे. सेम x और y मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में करके पावर कर देंगे और x और y को डिवाइड करके पावर m कर देंगे. ये डिवीजन. दो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यहाँ यूज हो रहे हैं. लेट्स सी, देयर इज द क्वेश्चन वर्कशीट 6. इन द वर्कशीट 6 देयर इज क्वेश्चन नंबर 1. पार्ट फर्स्ट, 4 to the power 4 into 5 to the power minus 4. देखिए कैसे सोल्व करेंगे? 4 to the power 4 into 5 to the power minus 4. तो सेम उसी मेथड से यहाँ हमारे पास पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लाई में हो रहा है. नो, पावर सेम नहीं हो रही है, बेसिस डिफरेंट है. पावर्स को सेम करिए कुछ. 4 to the power 4 and it will be into 1 by 5 to the power 4. क्या मैं इसे रेसिप्रोकल कर सकती हूँ? क्योंकि माइनस पावर को हटाने के लिए हम रेसिप्रोकल का ही यूज करते हैं. So we can write it as 4 power 4 and 5 to the power 4, and it will be the 4 to the power 4 and 5 to the power 4. देखिए x to the power 4, y to the power 4 and x और y are different. So 4 by y करके और पावर होल की पावर क्या कर देंगे हम? 4. It will be the answer here. Okay students, now we will go to the next part. Let's see. There is the next part here and it can be written as part 2. Let's see. One more thing students, we have to simplify it. Simplify, completely simplify करना है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 to the power 4 is 256 divided by 625. If this power to the power 4 and this to the power 4 is this. Now we are getting here the question part 2 here. 2 to the power 2 into minus 1 by 3 to the power 2. देखिए कैसे सोल्व करेंगे? सेम हियर 2 to the power 2. देखिए x और y डिफरेंट हैं बट पावर्स यहाँ सेम है. अगर सेम पावर्स हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया और हमने पावर को पूरी की पावर होल कर दी 2. मल्टीप्लाई करिए इसको तो माइनस 2 by 3 to the power 2 हो गया. Done. And minus to the power 2 is 4 and minus minus plus हो जाता है 3 3 जा 9. This will be the answer here. This will be the answer here. Now go to the third question. Minus 2 by 3 to the power 3 into minus 3 by 5 to the power 3, and it's getting here power 3 दोनों की पावर 3 है हमारे पास तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं. माइनस 2 by 3 ये मल्टीप्लाई में है इंटू माइनस 3 by 5 दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और होल पावर कितनी हो गई? 3. So what will we get here? This is equals to minus and minus plus
3 is cut there to both the answers. 2 by 5 to the power 3. It will be done. 3 से 3 कट हो गया, माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, 2 1 जा 2 एंड 5 1 जा 5. तो 2 by 5 to the power 3. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 5 जा 25, 25 to 5 जा 125. It will be the answer here. Now getting the fourth part, 1 by 2 to the power minus 2 into 2 by 5 to the power minus 2. What will be getting here? Let's see. Minus 2, power is same. So 1 by 2 into 2 by 5, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और डायरेक्ट पावर कितनी हो गई? माइनस 2. 2 is cut to each other. Now this equals to 1 by 1 1 जा 1, 5 1 जा 5. 1 by 5 to the power minus 2. And this will be the हम इसे रेसिप्रोकल कर सकते हैं 5 by 1 लिख करके और पावर चेंज कर देंगे. That is the 25 here. It will be done. Now there is the fifth part. In the fifth part, what will we do here? Minus 5 by 6 to the power 4 divided by minus 7 by 6 to the power 4. So let's see. There is minus 5 by 6 to the power 4 multiply. अच्छा पावर 4 है तो हम दोनों को आपस में डिवाइड कर सकते हैं. This will be divided by minus 7 by 6 and to the whole power is 4. दोनों को हमने डिवाइड कर दिया और पावर हमने 4 लगा दी. अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे. पहले minus 5 by 6 और डिवाइड को माइनस और माइनस को डिवाइड करते हैं तो प्लस बन जाता है. इसको पहले ही कैंसिल कर दीजिए. एंड डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और अगले वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा 6 by 7. सो इट्स पावर इज 4. 6 is cut to each other. 5 to the power 4, 7 to the power 4. अब करके देखिए इसको. 5 तो 625 हो जाएगा एंड 7 टू द पावर 4. So students, it will be getting here 625 divided by 2401. Now there is the next question. There is the sixth part, and in the sixth part there is given here minus 2 by 3 to the power minus 5 into minus 3 by 2 to the power minus 5. So what will we do here? Power is same, so multiplying easily. Minus 2 by 3 into minus 3 by 2 multiplying and the power is minus 5. देखिए क्या करेंगे हम. यहाँ 3 से 3 कट हो रहा है, 2 से 2 कट हो रहा है एंड माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस एंड 1 टू द पावर minus 5 and its reciprocal is 1 to the power 5. So answer is 1 here. So next question is seventh part. Sorry, question number 2 is there now. Question 2 and part first. अभी यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3 स्क्वायर इंटू माइनस 4 होल स्क्वायर equals to minus 12 to the power 2x and we have to find the value of x. तो पावर सेम होती है तभी हम कर पाते हैं इक्वेट पावर्स को. तो देखिए कैसे, अगर बेसिस सेम होंगे तभी हम पावर्स को इक्वेट कर पाएंगे. तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, बट बेसिस डिफरेंट है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 3 इंटू माइनस 4 टू द पावर 2 इक्वल्स टू माइनस 12 टू द पावर 2x. So what will be getting here? 3 minus 4 is minus 12 here. To the power 2 is equals to minus 12 to the power 2x. And it implies अगर बेसिस सेम है तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इक्वेट कर सकते हैं. 2 is equals to 2x and it will be x is equals to 2 by 2. ये 2 यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. This will be the answer here 1. Now there is the question number 2. In the question number 2 there is given here minus 3 by 2 to the power 6 into 4 by 9 to the power 3 is equals to 1 by 2 to the power 3x. It will be done. So what can we do here? Minus 3 by 2 whole to the power 6. देखिए यहाँ बेसिस तो डिफरेंट है, पावर्स भी सेम नहीं हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि पावर्स को सेम कर लें. 2 by 3 to the power 6 to the power 2 and whole to the power 3. इनको हमने 2 to the 4 and 3 3 जा 9. So हमने 2 by 3 to the power 2 कर लिया and whole to the power 3 कर दिया and this is equals to 1 by 2 to the power 3x. So what will be getting here? अब देखिए यहाँ हमारे पास 6 हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है. अब ठीक है, 3 by 2 to the power 6 into 2 by 3 to the power 6 is equals to 1 by 2
to the power 3x. So what will we get here? पावर 6 हो गई दोनों की, तो हम डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So देखिए क्या करेंगे हम. It implies minus 3/2 into 2/3 and its power is 6. 1/2 to the power 3x. It will be done. So क्या किया हमने, 3 से 3 कट कर दिया, 3 से 3 कट कर दिया, 2 से 2 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, यहाँ -1 आ गया, तो -1 to the power 6 और -1 to the power even number, so it will be the positive and this is equals to 1/2 to the power 3x and this is the 1 here and 1 is equals to 1/2 to the power 3x. But students, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/2 to the power 0, क्योंकि हमें बेस सेम बनाना है तो पावर्स को तभी इक्वेट कर पाएंगे. तो बेस सेम बनाने के लिए हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ 1 ही रह जाए लेकिन यहाँ हमें बेस भी 1/2 मिल जाए. तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है कि किसी की भी पावर 0, तो किसी के भी तो कुछ भी नंबर ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो वो नंबर हमने 1/2 चूज कर लिया. 1/2 to the power 0 is equals to 1 and 1/2 to the power 3x. So what will we get here? This is, it implies 0 is equals to 3. x बेसिस सेम है तो 0 और 3x को, it implies x is equals to 0 divided by 3, that is 0 here. It will be the answer here. Now there is the third part. In the third part, what will we do here? 4/5 to the power -2 divided by -4/5 to the power -2 is equals to 1 to the power 3x. It will be done. So can we do here anything else? Yes, 4/5 to the power -2 to the power -2. देखिए -2 हो रहा है, हम इसे डिवाइड कर सकते हैं -4/5 एंड टू द पावर -2 हो रहा है कंप्लीट का एंड दिस इज इक्वल टू 1 to the power 3x. तो देखिए क्या हम यहाँ कुछ कर पा रहे हैं. 4/5 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो दिस विल बी कन्वर्टेड टू -5/4 एंड इट्स पावर इज -2 एंड इट्स द 1 to the power 3x. तो देखिए यहाँ क्या चेंजेस आ रहे हैं, कुछ 5 से 5 कट हो रहा है, 4 से 4 कट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है -1, हर जगह 1 1 हो गया, तो नेगेटिव साइन है, तो -1 to the power -2 इज इक्वल्स टू 1 to the power 3x. बट यहाँ -1 है तो -1 to the power -2, तो -2 को हटाने के लिए पहले रेसिप्रोकल करेंगे, तो फिर से -1 to the power 2 ही हो जाएगा एंड 1 to the power 3x. अब देखिए यहाँ powers minus to the power 2 is plus, so 1 to the power 2 is equals to 1 to the power 3x. So what will be getting here? 2 is equals to 3x. Is this clear students? Now it implies x is equals to क्या हो जाएगा, this 3 is divided to this 2/2, 2 divided by 3. It will be the answer here. Okay students, now let's go to the next question, that is the fourth part. Let's see, there is a fourth part here. In the fourth part, what will we do? 9/4 to the power 3 into 8/9 to the power 3 and 2 to the power 6x. What can we do here? Let's see again. Power 3, it means हम multiply कर सकते हैं हम इनको easily, and to the power 3 it's equals to 2 to the power 6x. It done. 9 से 9 कट हो गया, 4 1 4, 4 2 8, so 2 to the power 3 is equals to 2 to the power 6. So powers को equate कर सकते हैं हम. So it implies 3 is equals to 6x. Now it implies x is equals to what? 3 divided by 6. This 6 is multiplying here, so divided by 6. 3 1 6, 3 2 6. X is equals to 1 by, it implies x is equals to 1/2 is the answer here. Okay. Now there is a fifth question. 15/4 to the power 3 divided by 5/4 to the power 3 is equals to 3 to the power x. देखिए अब क्या करेंगे यहाँ, 15/4 पावर सेम है तो डिवाइड कर देंगे हम इनको, बीच में डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाय 5/4 और होल पावर लगा देंगे 3 to the power x. इन दोनों को हमने डिवाइड किया और कंप्लीट की पावर हमने क्या रख दी, जो पावर थी. 15/4 एंड डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके और रेसिप्रोकल कर देते हैं 5/4/5 एंड टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 to the power x. So what will be getting here? 4 से 4 कट हो गया, 5 1 5, 5 3 15 एंड दिस इज 3 to the power 3 and 3 to the power x. So हम इक्वेट कर सकते हैं इनको, तो कैन वी गेट इट?
3 is equals to x. This is the answer here. Okay students, it will be completed here. This worksheet, worksheet 6 is completed here. Now we will do here the worksheet 7. देखिए worksheet 7 में आपको क्या दिया हुआ है. There is the worksheet 7. In the worksheet 7, what will we do? There is use of exponents in expressing large and smaller numbers. Large और smaller numbers को use करने के लिए हम exponents का use करेंगे. देखिए यहाँ ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ ये नंबर लिखा हुआ है. तो हमने ये चीज पिछली क्लास में भी सीखी थी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं. 17 into 10 crore. Is this clear students? So what will we do here? Sorry, 1 lakh, 1 arab. Let's do. यहाँ हम चेक करेंगे. कुछ बड़े नंबर हो जाते हैं, जैसे हमारे पास 1, 10, 100,000, 10,000, lakh, crore, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. एंड उसके बाद हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें नहीं पता, हम कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं. इससे ज्यादा नंबर जीरो आ जाए और जीरो आ जाए और जीरो आ जाए, तो उनको हम लिख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं. तो इसलिए हमें पावर्स का यूज करना सीखते हैं. यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स इन एक्सप्रेसिंग लार्ज एंड स्मॉलर नंबर्स. लार्ज और स्मॉलर नंबर्स को हम एक्सपोनेंट्स में कैसे चेंज कर सकते हैं. स्मॉलर नंबर्स को भी हम चेंज कर सकते हैं. देखिए यहाँ क्या लिख दिया हमने. 5 ये नंबर दिया हुआ है और हमने इसे चेंज कर दिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस है, तो इसे हमने लिख दिया 5 into 10 to the पावर कितनी हो रही है. 10 to the पावर मतलब 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है. 9 टाइम्स. इट मीन्स 10 की पावर कितनी हो जाएगी. 9. सेम 15 into, अगर हमें 50 की फॉर्म में लिखना है, 50 की फॉर्म में, तो 510 हमने पहले ही ले लिया. अब 10 कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अगर हमें 500 की फॉर्म में लिखना है, तो 500 और इंटू 10 टू द पावर कितने बच गए. 2 तो हमने यूज कर लिए हैं, बाकी बच गए कितने. 7. तो 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 7 टाइम्स. तो पावर कितनी हो जाएगी. 7. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज द के हियर. जो बेस होता है उसे हम, जो स्टार्टिंग का जो नंबर होता है, जो भी हम नंबर लेते हैं उसे हम बोलते हैं के. के सम नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, और एन पॉजिटिव इंटीजर पावर होगी. Every large number can be expressed as the k into 10 to the power n. और हम किस एक्सप्रेशन में हम इन्हें एक्सप्रेस करते हैं हर लार्ज नंबर को. k into 10 to the power n फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जिससे कि हमारे पास हमें समझ में आ जाए कि बहुत ही छोटा सॉल्यूशन है, लिखने में भी छोटा और पढ़ने में भी छोटा. वेयर k is some number and n is a positive integer. जहाँ n पॉजिटिव इंटीजर होगा और k कोई सम इंटीजर होगा. और ये k हमेशा, जो k होता है वो हमेशा 1 to 10 के बीच में ही रखने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो अगर यहाँ तक ऐसा होता है तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं. जैसे ये वाला था फर्स्ट वाला, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, बट ये हम अपनी मर्जी से करते हैं कि हमें जो लेना है, हमें जो चाहिए है, जिसका हमें यूज करना है, हम उसी अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं. देखिए यहाँ कोई नंबर है 0.00021. अब देखिए अगर हमें इसे नंबर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई के होना चाहिए नंबर, तो नंबर कहाँ से स्टार्ट है. 2 से. तो 2 के बाद डेसिमल को लेकर आना है. तो 2 के बाद डेसिमल को लेकर आएंगे, तो इसके लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कितने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 3 and 3 6. क्योंकि यहाँ 21, ये डेसिमल को हटाया है इन्होंने. डेसिमल को हटाने पर 21 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 21, और ये पावर्स ऊपर जाएंगी. 10 to the power 6 है यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 10 to the power -6. नाउ दिस विल बी द, हमें डेसिमल 1 प्लेस पहले लेकर जाना है, तो 1 प्लेस पहले लेकर जाएंगे, तो यहाँ 1 पावर लेस हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. -6 + 1 कर देंगे, यहाँ पर 1 पावर बढ़ा देंगे. अगर हमें डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है. ये आपको दिया हुआ है. इट मूव्स फ्रॉम राइट टू द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज नेगेटिव. देखिए ये दिया हुआ है डेसिमल पॉइंट मूव्ड फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट. राइट से लेफ्ट साइड में गया है, राइट टू द लेफ्ट. इट मूव्स फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट. द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज पॉजिटिव. एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज पॉजिटिव कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे. कुछ जितना प्लेसेस गया है उतना प्लेसेस प्लस कर देंगे. तो यहाँ भी वही है, सेम हियर. अगर डेसिमल लेफ्ट टू राइट गया है, लेफ्ट टू राइट गया है,
इधर से इधर, तो हम पावर क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। इज दिस क्लियर? डेसिमल अगर राइट से लेफ्ट साइड में गया है तो हम पावर्स को पॉजिटिव करेंगे, और लेफ्ट से राइट साइड में गया है तो हम पावर्स को नेगेटिव करेंगे। सो देखिए यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास 92340000, इसे हमें k इंटू 10⁻n में लिखना है। तो यहाँ डेसिमल कहीं नहीं है तो यहाँ पे लगा होगा। इस डेसिमल को हमें किसी 1 डिजिट के बाद ले जाना है, दैट इज 9, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें चेंज करना है तो हम 9 के बाद ही ले जाएंगे। तो यहाँ लेकर जाना है, तो कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हो गए। तो 10⁻, पॉजिटिव पावर हो जाएगी 7। कहाँ लेकर गए हैं हम, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में लेकर गए हैं तो +7 कर देंगे। और अगर राइट साइड में लेकर जाना है हमें, लेफ्ट में है और राइट में हमें लेकर जाना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 प्लेसेस के बाद ही लेकर जाना है हमें, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल लगाना है। तो जब हम लेफ्ट साइड में लेकर जा रहे हैं, राइट साइड में लेकर, लेफ्ट से राइट साइड में लेकर जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी 10⁻⁻4। वो होता क्यों है, ये रीजन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पहले डेसिमल को हटाइए, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें 1 से पहले डेसिमल चाहिए है, तो एक प्लेस और कम करना है। इट मीन्स एक जीरो और हटा दीजिए, 10⁻ कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर 6 था, ऊपर आकर के ये नेगेटिव पावर हो जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 10⁻⁻5। देखिए ये पॉइंट्स, आप दोनों पॉइंट्स आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स लिखना है, टू बी मूव्ड, नंबर ऑफ डिजिट्स, places, number of places. Now there is the next, there is a question here, question 7. In the question 7, what will we do here? Let's see. There is question number 1. Question 1 part first. There is हमें चेंज करना है k इंटू 10⁻n, और जहां k क्या होगा, 1 लेस देन इक्वल्स टू k लेस देन 10, ये होना चाहिए। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो क्या करेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1384000, ये दिया हुआ है नंबर आपको। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ डेसिमल कहीं नहीं है तो कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, लेकिन हमें लाना कहाँ है, 1 के बाद में लाना है। तो कितने प्लेसेस पहले हम शिफ्ट कर रहे हैं इस डेसिमल को, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस पहले। तो क्या हो जाएगा, 1.384, बाद में जीरो लगाने का कोई मीनिंग नहीं है, तो 10⁻, प्लस, राइट से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो प्लस पावर होती है, और कितनी हो गई, 6 पावर +6। तो इट विल बी रिटन 1.384 इंटू 10⁻6। It will be getting here. Now there is the part 2. In the part 2, what will we do? 12.32005. देखिए यहाँ हमें 1 के बाद डेसिमल लेकर जाना है। Is this clear? सिर्फ एक ही डिजिट से पहले लेकर जाना है। तो क्या करेंगे हम, 1.2320005 इंटू 10⁻, हम डेसिमल को फिर से हम राइट से लेफ्ट साइड में लेकर जा रहे हैं तो पावर 1 हो जाएगी। Is this clear? So now there is a third part. In the third part there is 2157.957. अब यहाँ देखिए डेसिमल को किधर लेकर जा रहे हैं, यहाँ। तो कितना प्लेसेस पहले लेकर गए, फिर से वही साइड, 2.157957 इंटू 10⁻³ +3. Now there is a fourth, 0.00002. What will be getting here? अब डेसिमल को हमें कहाँ लेकर आना है, 2 के बाद में, 1 2 3 4 5 डिजिट्स के बाद में। तो 2.0 इंटू 10⁻⁻5, यहाँ अब नेगेटिव पावर हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम। नाउ देयर इज द नेक्स्ट डिजिट, दैट इज देयर इज द फिफ्थ पार्ट। इन द फिफ्थ पार्ट 0.00729। अब डेसिमल को कहाँ लेकर आना है, 7 के बाद में। कितने डिजिट्स, 7.29 into 10⁻3. It will be done. Now there is a sixth part, 0. How many zeros are there? 3, 3 and 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 2, 6. तो बताइए कितने प्लेसेस के बाद, 9 तो जीरो हैं और 9 के बाद हमें डेसिमल को लेकर आना है, यहाँ लेकर आना है, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव पावर आएगी 9.26 इंटू 10⁻10। इट विल बी डन हियर।
So now what will we do here? Seventh part. There is a seventh part. 5 2 0 0 0 0 and 0 0 0. तो हमें डेसिमल कहाँ लेकर आना है? यहाँ से 5 के बाद 3 3 6 2 8. 5.2 into 10 to the power 8. पॉजिटिव पावर आएगी क्योंकि राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं हम. Now there is a next eighth part. The eighth part 0.00000. This will be the 3 and 2 5 and 8 5. अब 8 के बाद हमें लेकर आना है. तो देखिए फिर से हमें क्या करना है, हम लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हैं. तो 8.5 into 10 to the power minus 336 minus 6 is there. Now there is a question number second. What will we do in the question number second? Let's see. There is the question second here. क्वेश्चन सेकंड में देखिए राइट द यूजुअल फॉर्म में लिखना है हमें. यूजुअल फॉर्म मतलब इस फॉर्म में हमें चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है. यूजुअल फॉर्म. इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो फर्स्ट पार्ट इज 52.5 into 10 to the power 4. देखिए 4 पावर है, पॉजिटिव पावर है. अगर पॉजिटिव पावर है इट मीन्स हमें किस साइड में जाना है? लेफ्ट टू. पॉजिटिव पावर के लिए हम राइट टू लेफ्ट में जाते हैं. तो राइट टू लेफ्ट, राइट में है और लेफ्ट में जाना है. तो कितने प्लेसेस? 4 प्लेसेस. तो 2 प्लेसेस पहले से दिए हुए हैं और 2 प्लेसेस और लिखने हैं हमें. तो यहाँ आ गया एंड लास्ट में जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए. दिस इज द यूजुअल फॉर्म. नाउ देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन. सेकंड इज 158.9 into 10 raised to power 6. तो डेसिमल किधर आएगा? इस साइड में. देयर इज देखिए स्टूडेंट्स यहाँ एक मिस्टेक हो गई है. अगर हम इधर से वापस अब जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव पावर आएगी. इट मीन्स हमें ये रूल अपोजिट रूल यूज करना है. यहाँ अगर यूजुअल फॉर्म है तो हमें अब अपोजिट करना है. लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है. तो पॉजिटिव पावर है तो लेफ्ट टू राइट जाना है. पॉजिटिव पावर है तो लेफ्ट टू राइट. 5 2 5 1 2 3 4 ये हो जाएगा. 5 2 5 3 zeros. Is this clear students? Now 158.9 into 10 raised to power 6. तो what will we get here? यहाँ भी हमें पावर 6 है तो लेफ्ट टू राइट जाना है. 1 5 8 9 6 डिजिट्स. 1 तो ये हो गया. 2 3 4 5 6 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल को ले आए. दिस विल बी डन हियर. नाउ देयर इज नेक्स्ट पार्ट. देयर इज अ थर्ड पार्ट हियर. In the third part, what will be written here? 9.545 into 10 raised to power 12. And this will be done here. 9, 5, 4, 5. 3 digits तो ये हो गए. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This will be the usual form. Now fourth part, 1.72 into 10 raised to power minus 5. अब देखिए नेगेटिव पावर है तो हमें पहले साइड में जाना है. तो 1 डिजिट तो पहले से ही है. 1, 2, 3, 4, 5 से पहले हम लेकर आ गए. दिस विल बी द आंसर. नाउ देयर इज द फिफ्थ पार्ट. इन द फिफ्थ पार्ट 8.5 into 10 raised to power minus 7. व्हाट विल वी गेट हियर? माइनस नेगेटिव पावर है फिर से वही. 8 तो पहले से ही हो गया और एक डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट से पहले हम डेसिमल ले आए. दिस विल बी द आंसर हियर. स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमारे पास 3 और 6 zeros है. एंड नाउ देयर इज द सिक्स्थ पार्ट. There is sixth part 2.9 into 10 raised to power minus 9. It will be getting here same 2 9 1 digit 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एंड फिर डेसिमल लगाएंगे. ये हो गया. इससे पहले भी हम 0 भी लगा सकते हैं. 0 point this 0 point this. Now there is a seventh part. सेवंथ पार्ट में हमें करना है 6 2 9 3.2 into 10 raised to power 5. देखिए क्या हमें मिलेगा? पावर 5 है. देखिए पावर 5 है तो हमें इधर लेकर जाना है. 6 2 9 3 एंड 1 2 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद डेसिमल लेकर जाना है. नाउ एट्थ पार्ट 1.925 into 10 raised to power minus 6. सो नेगेटिव पावर है तो वापस से हमें जाना है 1925. एक डिजिट तो ये हो गया. 2 3 4 5 6 and this is 0 point. 6 digits are there and the decimal and then 0. We will getting here this. Now there is the question number 3. In the question number 3, express each of the following in the form of k into 10 raised to power n. 10 raised to power n में ही एक्सप्रेस करना है बट हमें इन्हें सोल्व करके करना पड़ेगा.
तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है 1.25 into 10 raised to power 7 and this will be divided by 5 into 10 raised to power 3. It is okay students. So what will we do here? 1.25 into 10 raised to power 7 divided by 5 into 10 raised to power 3. तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. यहाँ क्या हो जाएगा 0.5 टू जा 10 and 5 5 जा 25 0.25 and into 10 raised to power 7 minus 3 and it's the answer 0.25 into 10 raised to power 4 और 10 raised to power 4 को अच्छा हमें इसी फॉर्म में लिखना है. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ दिस. ये हमारा आंसर हो गया. ओके स्टूडेंट्स, k टू द पावर n में चेंज करना है. सो अब हम डेसिमल को कहाँ लेकर जा रहे हैं? एक प्लेस लेफ्ट टू राइट, तो माइनस करेंगे यहाँ पर. तो 2.5 into 10 raised to power 4 minus 1 and that's the 2.5 into 10 raised to power 3. This will be the answer here. This is the first part. Now there is the second part. स्टूडेंट ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास, हमें जल्दी से फिनिश करना होगा क्लास को. 2.5 into 10 raised to power 10 into 31.25 into 10 raised to power minus 5. देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो पहले 2.5 को 31.25 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 10 टू द पावर 10. बेस सेम होते हैं इनटू 10 टू द पावर माइनस 5. बेसिस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाती हैं. पहले इसको मल्टीप्लाई करिए. सो स्टूडेंट्स 78.125 is getting there into this will be product here and we will get it as and 10 to the power ऐड हो जाती हैं. बेसिस अगर सेम है तो 10 minus 5 and this is equals to 78.125 into 10 to the power 5. And now but this decimal goes to this number, so there is the positive power 7.8125 into 10 raised to power 5 plus 1 6 and that's equals to 7.8125 into 10 raised to power 6. This is the answer. Now there is the third part. In the third part there is given here 1.6 into 10 raised to power 9 into 5.0 into 10 raised to power minus 3. What will we getting here? 1.6 into 5. 5.0 is doesn't mean 10 raised to power 9 minus 3. पावर्स सब्ट्रैक्टिंग हो जाए ऐड हो जाएंगी, सेम बेसिस है तो क्या हो जाएगा? दैट इज 8.0 into 10 raised to power 963 here and this is 8 into 10 raised to power 6. It will be done here. ये एक ही डिजिट के बाद है, k into 10 raised to power n फॉर्म में पहले से ही है. Now there is a fourth part 3.4. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या किया हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है एंड देन इससे डिवाइड किया हुआ है. तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया हुआ है. दिस विल बी इन द क्लोज्ड ब्रैकेट. पहले ये ब्रैकेट को, बड़े ब्रैकेट को सोल्व करेंगे एंड देन वी विल डिवाइड इट. लेट्स सी कैसे करते हैं. यहाँ हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. 3.4 into 5 into 10 raised to power मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर सेडिंग हो जाएंगी 4 minus 3. Now this will be multiplying here this and 10 to the power 1 4 minus 3 divided by this. Now 170 into 10 to the power 2 and divided by 2 into 10 to the power 5. So what will we get here? 17 by 2 into 10 to the power 2 minus 5. और हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं. दिस इज 0 1 2 3 4 5. 2 zeros तो यहाँ कट हो गए एंड 1 0 यहाँ हम कर देंगे 17 डिवाइडेड बाय 2 into 1000. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 8 जा 16 and 117 and 2 5 ja 10 and divided by this is into 10 raised to power minus 3. It will be done here. It will be the answer. Now students हमें क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही करना है. फर्स्ट पार्ट में देखिए सम्स की डायमीटर दी हुई है इतनी और हमें डेसिमल को यहाँ से यहाँ लेकर जाना है. राइट टू लेफ्ट लेकर जाते हैं तो पावर कैसी होती है? पॉजिटिव. एंड 3366 पावर हो जाएगी. किलोमीटर हम साथ में यूनिट लगा देंगे. नाउ डिस्टेंस, सन की डिस्टेंस अर्थ से, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है बस हमें, सॉरी एक्सपेंशन फॉर्म में, पावर फॉर्म में लिखना है हमें. तो फिर से डेसिमल यहाँ से यहाँ आ रहा है 1.5 एंड इनटू कितने प्लेसेस पहले? 336 टू 8 प्लेसेस पहले आया तो पावर 8 हो जाएगी. सेम हियर डेसिमल यहाँ आ रहा है 4 प्लेसेस पहले तो 10 टू द पावर 4 पॉजिटिव पावर हो जाएंगे. यहाँ 10 टू द पावर नीचे है 10 और ऊपर आकर के क्या हो जाएगी? 10 टू द पावर माइनस 10. सो 1
किसी से भी मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, 1 इंटू 10 टू द पावर -10 एंड 1.0 कर देंगे आंसर के लिए. दिस विल बी द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. कंप्लीट वर्क हो जाना चाहिए फेयर नोटबुक में एंड नीट एंड क्लीन वर्क. ओके स्टूडेंट्स, बाय.